Assalamu alaikum to all of you. This is Jaleel Ahmed Miman. I'm your today's facilitator in our lecture with regard to administrative law. Today we will discuss the basic constitutional principles involved in administrative law. First of all, we will go through with the definitions, then we will proceed towards these constitutional principles. What do we mean by administrative law? I need your input first. Sir, as Sir Ivar Jennings said, administrative law is a law relating to the administration. It determines the organization, powers and duties of the administrative authorities. Sir, Ivar Jennings के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामियात से ताल्लुक रखता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पहले एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है कि जी दिस विल बी अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज एंड उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. Good. Any other feedback from any other? कोई दूसरा मेरा बेटा, मेरा भाई छोटा. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो है जो कि गवर्न करता है पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, जैसे डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उनको फैसिलिटेट करता है, जैसे उनके जो काम्स हैं और उनके जो वर्क्स हैं, उनके मैटर्स हैं उनको. ओके, गुड डेफिनेशन. और okay, different philosophers have given their different definitions regarding administrative law. जैसे कि we discussed, the Ivar Jennings has said that it's a law relating to administration, and it determines the organizations, powers, and duties of administrative authorities. And according to Dicey, it's a portion of national legal system which deals with the legal status and liabilities of officials. Being a student of law, we have gone through with the provisions of the Constitution and we have studied the constitutional law. We know that Constitution is the supreme law of the land. It's a grand norm. Every law is to be made or formulated in accordance with the provisions of the Constitution. Any provision, any law, any ordinance, any statute, any act which is in contradiction with the articles of the Constitution shall be treated as null and void. The Constitution जो है वो क्या करता है? It provides the fundamentals. Let's say, for instance, the Constitution provides under Article 37D, the justice is to be provided, inexpensive justice. Now, under the scheme of separation of power, we have a judiciary. Now, how this judiciary would run? Under the separation of power, we have an organ of the government which is known as executive. How the executive would function? अमन अमान कैसे होगा? मुल्की मामलात कैसे चलेंगे? इदारे कैसे बनेंगे? उनके क्या इख्तियारात होंगे? उनका कैसा निज़ाम होगा? उनके फ़राइज़ क्या होंगे? Now, everything comes within the definition of administrative law. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल्स प्रोवाइड करता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा. सो इट्स अ लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये क्या डिटरमाइन करता है? ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ बनेंगी, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ बनेंगी, उनके क्या इख्तियारात होंगे, उनके क्या फ़र्ज होंगे, क्या उनकी लिमिटेशंस होंगी, कौन सी उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ आएंगी. जैसे डाइसी ने कहा कि इट्स अ पोर्शन ऑफ नेशनल लीगल सिस्टम, जो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसका एक हिस्सा है ये. विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वी कैन नॉट सर्वाइव. इट्स टाइप ऑफ पावर ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट. ये वो इख्तियारात हैं जिसके थ्रू ये हुकूमतें और मजबूत होती हैं. और इट डील्स विद द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑफिशियल्स.
अब जो भी अफसरान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट्स अ मशीनरी, इट्स अ टूल टू इम्प्लीमेंट the administrative policies, directions, notifications, circulars issued by the executives. So it's a tool for the executive to implement their executive directions. So while implementing these administrative policies, they take administrative actions. And this law determines their legal status कि कौन सा अफसर कौन से इख्तियारात रखता है, उसकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं और कौन से उसके पावर्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Now we have another famous philosopher, Wade, who says that administrative law is relating to control of governmental powers. It's a law relating to control of governmental powers. We know that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. In absence of administrative law, we cannot have any control over the governmental powers, because we know that once the executives are in the government, they are in the power. How do we restrict them? How do we make them to refrain from those steps which are not authorized to them, for which they are not legally entitled? अगर तमाम तरह इख्तियारात किसी एक आदमी, एक इदारे को दे दिए जाएं, तो वो करप्ट हो जाता है. It's a fact. So the prime object of the administrative law, according to Wade, is to keep governmental powers within their legal bounds. तो जो बुनियादी मकसद है कि जो सरकार, जो रियासत के इख्तियारात हैं, उनको कानूनी, आईनी दायरा कार के अंदर महदूद करके रखे. These are the thoughts of Wade. Now, Casey Davis is of the opinion that administrative law is a law relating to powers and procedures of administrative agencies. Now, in Pakistan, we have the executives, and under the constitutional law, the powers are distributed among three lists. Under Article 70, Subarticle 4, there is a distribution of powers. You might have gone through with this provision of the Constitution, but let me explain that under Article 70, Subarticle 4, the powers are distributed among the federal and provincial governments. Prior to 18th Amendment, these powers were divided into three lists. तीन कैटेगरीज में थे, एक फेडरल, एक प्रोविंशियल और एक कंकरेंट. 18वीं तरमीम के बाद ये अख्तियारात जो हैं ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक वफाक और दूसरा सूबाई. अब कंकरेंट लिस्ट जो है, इट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस. लेट्स से फॉर इंस्टेंस के अकॉर्डिंग टू आइटम 16, आई बिलीव फ्रॉम 6 to 46, फेडरल लिस्ट में जो आइटम 6 to 46 है, इनमें एक प्रोविजन है कि जी अथॉरिटीज आर टू बी एस्टेब्लिश्ड. अब कौन सी अथॉरिटीज जी? पैमरा एस्टेब्लिश कर दी, नेपरा एस्टेब्लिश कर दी, स्टेट बैंक बना दी. फिर उनके पावर्स बता दी जी. स्टेट बैंक का क्या काम होगा जी? तमाम जो बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, उनको लाइसेंस देगा, रेगुलेटरी बॉडी होगी ये. उसके बाद जी पैमरा हो गया, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी. उनका क्या काम है जी? तमाम जो भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको लाइसेंस देगा, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा. अगर कोई वो गलत करते हैं तो उनको देखेगा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम प्रोविंसेस में आ जाते हैं तो जो हमारे पास आप एक नॉर्मली वी कैन सी द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. वी हैव पुलिस टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. वी हैव एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट. Number of departments are created by way of administrative law.
So KC Davis कह रहा है कि जी these are the powers and procedure of administrative agencies. And Garner says that it is the study of institutions and administrative process. Whenever there is an institution, जब भी कोई इदारा बनाया जाता है तो उसके अंदर एक administrative process start हो जाता है. Let's say for example, we have district management. Deputy Commissioner is considered as the administrative head. We have local governments. Local bodies में we have the chairman as the political representative, whereas the administrative head is the town officer. Let's suppose town committee Nawabshah, town committee Sakran, town committee Qazi Ahmad. We have the local governments. Under the scheme of Sindh Local Government Ordinance 2015, we have got the local governments, and the chairman is the political head of a town committee and the town officer is the administrative head. So once these institutions are established, their administrative processes are started. Deputy Commissioner साहब आ गए जी, अब उन्होंने कहा कि जी how to issue a domicile. उन्होंने एक तरीक़ेकार बता दिया. SSP साहब ने कहा कि जी 2 डबल सवारी पे पाबंदी है, 144 इम्प्लीमेंट कर दिया to maintain the peace and process. Now these are the powers vested in these institutions, and the ultimate object is, the ultimate aim to do all these things is to achieve those objects set in the constitution. Constitution में कह दिया जी under Article 25 everybody is equal, and under Article 25A free and compulsory education to all the citizens of Pakistan. अब उन्होंने health education department बना दिया. अब उस आर्टिकल के कंप्लायंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बना, मिनिस्टर हुआ, सेक्रेटरी बने, बोर्ड्स बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बने, निचली सतह तक प्राइमरी स्कूल बने, फिर उनमें हेड मास्टर आ गए, टीचर्स आ गए, सुपरवाइजर्स आ गए, डायरेक्टर्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आ गए. अब ये क्या एक इदारा बना, ऑब्जेक्ट था 25A तालीम देना, उसके अंदर एक लिस्ट बनी फेडरल एंड प्रोविंशियल, फिर सूबों को कहा गया एजुकेशन इज़ योर डोमेन, फिर सूबों ने एजुकेशन को लेके एक इदारा बना दिया, उसमें एक मिनिस्टर लगा दिया, फिर एक इख्तियारात की मुंतकली कर दी निचली सतह तक. तो बेसिक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था वो आर्टिकल जिसमें लिखा गया था कि तालीम फराम करना रियासत की जिम्मेदारी है. तो रियासत ने लिस्ट बनाई इख्तियारात की, इख्तियारात ट्रांसफर कर दिए सूबों को, फिर सूबों ने वो इदारा बनाया, उस इदारे में उन्होंने पूरी मशीनरी बना दी. निचली सतह तक एक प्राइमरी स्कूल, एक क्लास का जो इंचार्ज है वो टीचर है, टीचर का इंचार्ज हेडमास्टर है, हेडमास्टर का इंचार्ज जो है आपका सुपरवाइजर है, फिर सुपरवाइजर को तालका एजुकेशन ऑफिसर डील करेगा, तालका एजुकेशन ऑफिसर्स जो मुख्तलिफ तालुकास के होंगे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के अंडर आएंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टर जो होगा रीजन या डिवीजन का उसके अंडर काम करेंगे, जो डायरेक्टर होगा वो डायरेक्टली सेक्रेटरी एजुकेशन के अंदर काम करेगा, जो सेक्रेटरी होगा वो सबऑर्डिनेट होगा, जो उसका पॉलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो होगा उसका मिनिस्टर, और वो जो मिनिस्टर है वो कैबिनेट से होगा, प्रोविंशियल कैबिनेट से, और वो इलेक्टेड होगा डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, और वो हिस्सा होगा चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट का, और चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड होगा. सो दिस इज द वे दीज इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर स्टार्टेड. Now it is the principal source of governmental power. जैसे मैंने कहा कि ये principal source of government power है. अगर देखें सदर पाकिस्तान तो नीचे आके कोई काम नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी सब काम नहीं करेंगे, वज़रा भी नहीं करेंगे, तो ये जो इख्तियारात हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी कोरोना कोविड के दौरान जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जी बाहर से नहीं निकलेंगे, यू हैव टू रिमेन एट होम. अब प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट कौन था? हेल्थ प्रोवाइड करना. कॉन्स्टिट्यूशन में कि हेल्थ देना, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, बीइंग एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस इज डायरेक्टेड कि जी आपको घर से बाहर नहीं निकलना, यू हैव टू वेयर द मास्क, यू हैव टू अबाइड बाय द स्टैंडिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स SOPs. अब वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा?
administration. So it is the principal source of governmental power. Now we come to the question of Mr. Hans, why the writ jurisdiction is there. So this is the chief mechanism. Administrative law is a chief mechanism. These are the words of Garner. That mechanism by which citizen grievances in respect of government elections may be examined. Let's say it, if an official is exercising his limits, is exercising his powers beyond his authority, and he is misusing the law, he is abusing the powers conferred to him, what would be the mechanism? एक आम आदमी के ऊपर कोई असिस्टेंट कमिश्नर साहब, कोई मुख्तियार कार, कोई पुलिस वाला, कोई सुई गैस का अफसर, कोई वापडा का ऑफिसर अगर कोई जुल्म करता है, वो अपने पावर से बियॉन्ड कर जाता है, कोई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो इज एक्सीडिंग हिज पावर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट इज एक्सीडिंग हिज पावर्स, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? तो ये मैकेनिज्म भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताया जाता है, वेयर टू गो। अगर ग्रेड 2 का एक छोटा सा मुलाजिम अदना, अगर कोई पियोन है, पटेवाला है, चौकीदार है, उसको प्रमोशन नहीं होता, वेयर वुड ही गो? कहाँ जाएगा वो? उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। तो उसकी एक प्ली है कि जी मुझे सस्पेंड कर दिया है फॉर नो रीजन, वेयर वुड ही गो? अपॉइंटमेंट का जो मैकेनिज्म है वो सही नहीं है जी, वो उन्होंने अपॉइंट किया अपनों को और अपना प्रोसेस जो है ड्यू लीगल प्रोसेस उसको अडॉप्ट नहीं किया, डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया, विदाउट एडवर्टाइजमेंट अपॉइंट कर दिया, अपनों को अपॉइंट कर दिया, तो कहाँ जाएंगे ये लोग? जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने पावर से एक्सीड कर जाएंगे तो किस तरीके से वो आम लोगों को उसका रिलीफ मिलेगा? So the chief mechanism is provided in the Constitution of Pakistan as Article 199 and 183 sub Article 3. The High Court and the Supreme Court has got the writ jurisdiction to redress the grievances of the citizens of Pakistan against the illegalities or atrocities or any infringement of right is caused by the public official. किसी भी आम पाकिस्तानी शहरी की अगर हुकूक की वायलेशन होती है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होती है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि अगर सर्विस मैटर है जी, वो ही विल गो टू सर्विस ट्रिब्यूनल। अगर पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो ही विल गो टू द ओम्बड्समैन, वफाकी मोहतसब और सूबाई मोहतसब। सो कोई भी सरकारी मुलाजिम को अगर कोई ग्रीवेंस होगा तो वो अपना ग्रीवेंस सबसे पहले कहाँ ले जाएगा? ही विल गो टू द सर्विसेज ट्रिब्यूनल, बिकॉज अंडर आर्टिकल 212 212 में सरकारी मुलाजिम के ऊपर बैन है कि वो अपना कंप्लेन जो है वो इस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता। तो उसके लिए इदारा बनाया गया सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स, वो सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में बने हुए। इन पाकिस्तान, इन सिंध वी हैव अ सर्विसेज ट्रिब्यूनल एट कराची। अगर सरकारी मुलाजिम किसी आम आदमी के साथ कोई उसकी तलफी करता है तो प्राइमरी हमारे पास एक फोरम है, दैट इज नोन एज ओम्बड्समैन, वफाकी मोहतसब। सो प्रिसाइजली जैसे गार्डनर ने कहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, it is the principal source of governmental powers, it is the mechanism for the redressal of the grievances and administration of local government। जैसे हमने डिस्कस किया कि लोकल गवर्नमेंट्स को किस तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। हमारे पास सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2015 के तहत लोकल गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड हैं और वो अपना काम कर रही है अंडर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैन एंड जैन ये कहते हैं कि जी डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर्स, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने भी डिस्कस किया। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए। Griffith and Streets are of the opinion that we need to see that what sort of powers does the administration exercise, किस तरह के इख्तियारात कौन सा ऑफिसर एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सा इदारा किस काम के लिए बना है और उनको किस तरह के इख्तियारात हैं, किस हद तक उसकी लिमिट्स हैं। क्या वो इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं कर रहा, और अगर वो तजावुज़ कर रहा है तो किस तरीके से उसको लिमिट में रखना है, कंट्रोल में रखना है।
Now, what procedures are to be followed by administrative authorities and remedies available to a person affected by administration? इदारा बनाया गया, उसमें एक बाला अफसर तैनात किया गया और उसको इख्तियारात दे दिए गए। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया गया लोगों की हेल्थ को देखते हुए कि उनकी जो पानी और उनके ड्रेनेज और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। अब उसको कहा गया कि जी आप ड्रेनेज बना दें, बारिशें हो रही हैं, आबादी बढ़ गई है, पानी का दबाव बहुत है, पुरानी वाली ड्रेनेज खराब हो गई है, यू नीड टू हैव अनदर ड्रेनेज लाइन। अब वो ड्रेनेज बनाने के लिए जी उनको फंड्स दे दिए गए कि जी आप ये 10 करोड़ रख लें, आप ड्रेनेज लाइन बना दें। अब वो 10 करोड़ भी आ गए, अब वो ड्रेनेज लाइन बनानी है। अब वो क्या करेगा? वो अपने भाई को बुलाएगा कि जी आप यहाँ से ड्रेनेज लाइन बना दिए, 10 करोड़ उठा लें, 5 करोड़ का काम करें, 5 करोड़ मुझे दे दें। Is it okay? No, it's not. We have certain procedures to follow. An administrative head has got the authority, but he has to exercise such authorities within the limits prescribed to him under the law. We have SEPRA rules कि जी अगर कोई ठेका दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो कैसे होगा? एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट के बाद बिडिंग होगी, जो लोएस्ट बिड देगा उसको वो ठेका दिया जाएगा, वो अपना डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाएगा 2% का, उसके बाद लोएस्ट बिड को, उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए उसको ठेका दिया जाएगा। ठेका जब स्टार्ट होगा तो उसको पार्ट पेमेंट की जाएगी, जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे पेमेंट होगी। तो प्रिसाइजली मैंने कहा कि जी देयर आर सर्टेन रूल्स एंड लिमिट्स कि किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज काम करेंगे। अब अगर कोई अथॉरिटी सही काम नहीं कर रही, जैसे हमने डिस्कस किया कि जी पब्लिक हेल्थ को ठेका, उनको कहा कि ड्रेनेज लाइन बनाए, पब्लिक हेल्थ वालों ने प्रोसीजर्स को अडॉप्ट नहीं किया। वी हैव गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर हंस अली। यस हंस। Sir, it is not a question. I just got a notification from Zoom that we will be disconnected in 10 minutes. In case we are disconnected, so it is requested to all students kindly join the same link. I'm done, sir. Okay, thank you. So we were discussing about an example. We are discussing a scenario. Let's say, for instance, there is a dire need of a drainage line, and the public health authorities are directed to have this drainage line at earliest. The funds were transferred from the government to the public authority, public health department. Public health department के पास वो funds आ गए, अब वो drainage line बनानी है। अब अगर the procedures are not properly followed, अब कोई समझता है कि जी injustice have been committed, ठेकेदार जो जिसने ज्यादा बिड दी थी उसको ठेका दिया गया, प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, अपना जो अजीज और करीब है उसको ठेका दिया गया, द नेक्स्ट हु इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ दिस पब्लिक ऑफिशियल, वो कहाँ जाएगा? ही विल डेफिनेटली गो टू द हाई कोर्ट अंडर द रिट ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई प्रोसीजर है कि जी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, फिर जो भी जूनियर क्लर्क हैं वो सीनियर क्लर्क प्रोमोट होंगे और उस सीनियरिटी में जो जूनियर था उसको सीनियर करार दे दिया गया, जो 9 नंबर पे था उसको पहले नंबर पर लेकर आ गए, कोई लीगलिटी हुई, अपनों को नवाज दिया, नेपोटिज्म हुई, तो वो जो जूनियर क्लर्क अफेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू द सर्विस ट्रिब्यूनल। और ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आती हैं। Let's come to the basics of administrative law. अब हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, ये फंडामेंटल्स बताता है, बुनियादी प्रिंसिपल्स बता देता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, वो उन फंडामेंटल्स को लेके वो डिटेल्स तक डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। Primarily, historically, there was no difference in between the administrative law and the constitutional law, but in present days we have got a difference. We say that administrative law deals with the organizations, functions, powers and duties of administrative authorities, while constitutional law deals with the general principles relating to organization and powers of
various organs with the individuals. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल्स को डिस्कस करता है और एडमिन लॉ जो है वो उसकी डिटेल्स बताता है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ राइट्स क्रिएट करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो फोकस होता है वो पब्लिक नीड्स होती हैं. अब सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीफ मैकेनिज्म है हमारे पास पाकिस्तान में तो 199 एंड 183 सब आर्टिकल 3. और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का दूसरा सोर्स है एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, कि मुख्तलिफ एक्ट्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है. ऑर्डिनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स पास्ड बाय गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स. आपने लीगल सिस्टम पढ़ा है, आपको पता होगा कि किस तरीके से कानून साजी होती है, किस तरीके से कानून बनते हैं. तो जो सदारती जो ऑर्डिनेंस हैं, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस देते हैं, जो नोटिफिकेशन डायरेक्शंस आती हैं, ये भी दीज आर द सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. जुडिशियल डिसीजंस, जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स हैव गॉट द पावर टू इंटरप्रिट द लॉ. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो जुडिशियल डिसीजंस भी हैं. बल्कि अमेरिका में तो ये कहा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इट्स अ जज मेड लॉ. कोर्ट्स ने ये लॉ बनाया है. ये हमने एक चीज पढ़ी, अभी डिस्कस की, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. जो इख्तियारात हैं वो करप्ट करते हैं, और जो अगर कोई इख्तियारात का चेक एंड बैलेंस ना हो तो डेफिनेटली वो एब्सोल्युटली करप्ट करते हैं. मॉन्टेस्की was a philosopher who propounded the concept of separation of power. सेपरेशन ऑफ पावर आपने पढ़ा होगा अपने लीगल सिस्टम में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. According to separation of power, there are three organs of the government. One is legislative, other is executive, and third one is the judiciary. Legislative का काम है कानून साजी करना. एग्जीक्यूटिव का काम है उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराना थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेशन. और जुडिशरी का काम है अगर कानून साजी सही नहीं बनी तो उसको चेक करेगी, और अगर कवानीन के ऊपर सही अमल दरामद नहीं हो रहा, मिसयूज ऑफ पावर है, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स है, तो जुडिशरी का काम है कि उसको चेक एंड बैलेंस करना. Now what are the advantages? एडवांटेजेस ये हैं कि जी अगर हर आदमी अपने अपने डोमेन में काम करेगा तो इख्तियारात उनके पास रहेंगे और इंटरफियरेंस नहीं होगी और वायलेशन नहीं होगी. These are the topics which we have already discussed in our previous classes. Maybe if you need to know the details, we can also discuss later on. अब सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पास भी है, पाकिस्तान में है. आपने देखा है कि जी द जुडिशरी is working independently, the legislation is working independently, and the executives are working independently. ये तीन मुख्तलिफ इदारे हैं. डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, people representatives are elected. Mr. Mohammad Khan, you are requested not to use these highlighters and markers on the screen. लोगों ने अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया. वो सर इनको बोले कि वॉइस भी ऑफ कर दो सर. जी वॉइस भी ऑफ कर दें भाई. देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज आई बिलीव इन लिबर्टी. मैं किसी का माइक ऑफ नहीं करता. आप यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन. माइक्स आर ऑफ. सो लीगल सिस्टम में हमने देखा कि डायरेक्ट इलेक्ट हुए लोग लेजिस्लेशन में आ गए, उन्होंने कानून साजी की, फिर उन्होंने अपना एक एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट किया, उन्होंने काबीना बनाई. एग्जीक्यूटिव्स ने फिर जो आइन और जो कवानीन और जो इख्तियारात उनको दिए कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट की और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया. कहीं पे भी कोई
नाइंसाफ़ी होती है तो जुडिशरी उसको चेक करती है। और पाकिस्तान में जो कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, बट इन यूनाइटेड स्टेट्स इट इज़ फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर वेड इज अ फेमस फिलोसोफर। उन्होंने कहा कि जी सेम सेट ऑफ पर्सन्स must not be allowed to work more than in one department। ये कुछ उसूल हैं जो उसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतरीन करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो लोग एक इदारे को चला रहे हैं कि वो फिर दूसरे इदारे को ना चलाएं। हमारे पास वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि डेपुटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट इन CR 93 अ फेमस जजमेंट बाय मिस्टर अमीर मुस्लिम हानी, उन्होंने ये डेपुटेशन डिटेलमेंट को ख़त्म कर दिया। यानी एक डॉक्टर है वो डिप्टी कमिश्नर बन गया, एक टीचर है वो टाउन ऑफिसर बन गया, और एक हेल्थ का जो डायरेक्टर है उसको इंजीनियरिंग का भी आप डायरेक्टर कर दें। तो ये क्या होता है, ये इदारों के अंदर आप एक आदमी को एक जो बेसिक उसकी जॉब है, उस ए कैडर्ड जॉब, क्वालिफाइड फॉर अ पोस्ट, लेट्स से फॉर इंस्टेंस के अ टीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन हु इज ट्रेन्ड to educate the special children, अगर हम उसको ट्रांसफर करके भेज देते हैं डायरेक्टर टीचर्स का जो नॉर्मल हमारे पास एजुकेशन है, या इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर हेल्थ, तो क्या वो काम कर सकेगा? सही नहीं कर सकेगा, इदारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्पिरिट में, अगर आदमी एक इदारे में काम कर रहा है तो उसको दूसरे इदारे में नहीं भेजा जा सकता, या उसको दूसरे इदारे की चार्ज नहीं दी जानी चाहिए। और एक इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है उसको ये इजाजत नहीं हो कि वो दूसरे इदारे में जाके इंटरफियरेंस करे। सुई गैस का के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बिजली वालों के मामलात में दखल अंदाजी करे। एक इदारे को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे इदारे के इख्तियारात को इस्तेमाल करे। मुदाखलत करना और इस्तेमाल करना यानी टेक ओवर नहीं कर सकता। इसीलिए मोस्टली हमारे पास बहस होती है कि अगर जुडिशरी को जुडिशल वर्क के अलावा जी हम बता दें कि जी स्कूल भी आपको संभालना है, हेल्थ के डिपार्टमेंट डॉक्टर को भी आपको देखना है, फिर आगे जाके आपको पब्लिक हेल्थ को भी देखना है, इलेक्शंस भी आपने करवाने हैं, सेंसस है, पोलियो में भी आपने सपोर्ट करनी है, तो वो इदारा क्या होगा, उसकी अपनी जो बेसिक जॉब है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी अपनी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होगी। एक आदमी जो डॉक्टर है, अगर हमने उसको डीसी लगा दिया, जी आप डॉक्टर हैं, आप DHO हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी हैं और आप डिप्टी कमिश्नर भी हो जाएं, PIA के एक जो फ्लाइट इंजीनियर है आप उसको SSP लगा दें यहाँ पे जी, नवाब शाह का SSP, तो आप क्या समझते हैं वो फ्लाइट इंजीनियर SSP का काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। जब तक ये होता रहेगा तब तक आपके इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। और ये चेक एंड बैलेंस कौन क्रिएट करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्रिएट करता है। हमारे पास ये जो डेपुटेशन डिटेलमेंट होती थी पहले, तो अब ये नहीं है। बाय वे ऑफ अ जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय अमीर मुस्लिम हानी कि कैडर जॉब, एक आदमी अगर एक स्पेशल किसी जॉब के लिए क्वालिफाई करता है तो सिर्फ वही काम उससे लिया जाए, उसको किसी दूसरे काम में ना फंसाया जाए। ओके, दीज वर दी डिस्कशंस जो थोड़ी बहुत आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है कभी कभी। तो ये चीज़ें जो थी मेरे जहन में थी, मैंने कहा कि ब्रीफली आपसे डिस्कस की जाए। अब नाउ दीज आर दी छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स हैं, ये आपने अब करनी है और आपने लेक्चर देना है इनके ऊपर। हमारे पास वी हैव 6 पार्टिसिपेंट्स, तो ये 2-2 पार्टिसिपेंट और एक पार्टिसिपेंट इसके ऊपर काम करे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें आप बोलेंगे 10-10 मिनट के लिए और हम इसको सुनेंगे सब जो भी होगा। ठीक है जी। द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये एक ही टॉपिक है। हिस्टोरिकल ग्रोथ, कि हिस्ट्री में ये कैसे बढ़ा, कैसे आगे आया और इसके रीजंस क्या थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, व्हाट वर द रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और फरीद अनलिमिटेड एक पहले ही एक इम्पॉर्टेंट केस है इसमें, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक में, इसको भी पढ़ लीजिएगा और इसके ऊपर भी आप बात करेंगे। सो मिस्टर CR हंस, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू, आप ये
असाइनमेंट्स डिटेल कर दें बच्चों को, और जो भी आपके भाई बहन हैं हमारे उनके हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ऑन कमिंग फ्राइडे और सैटरडे, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे एंड यू पीपल विल स्पीक अबाउट इट एंड वी विल हियर यू इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो यू मे आस्क। Okay. Yes, sir. I will inshallah convey this message to everyone. And so I have a question that as we have gone through the writs of the Constitution, certiorari, mandamus, and prohibition, writ of quo warranto, and writ of habeas corpus. So, as we read in writ of quo warranto, that the High Court, at the application of any person, can ask from any governmental government official, that at what authority you are performing an act, or you are holding an office or any kind of official act. And you said that the government person cannot invoke the courts. He has to go to the tribunal courts. So, sir, can you explain how? Yes, Hans. I will recall my words. अभी आपने बताया कि जी any person can file a complaint before the court with regard to the illegal appointment of a public official. और जो मैंने दूसरा आर्टिकल 212 बताया कि no civil servant can go to the courts, the tribunal, services tribunal is the option which they have. अब ये आप थोड़ा सा डिफरेंस कर लें कि वहां पे एनी पर्सन से मुराद है कि कोई भी आम आदमी, ठीक है जी, कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं, कोई सरकारी मुलाजिम किसी दूसरे सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नहीं जा सकता कि ये जो इसकी पोस्ट है ये इसके खिलाफ है और ये he is not legally entitled to hold this post. If a government servant raises a complaint for another government servant, then he will go to the services tribunal. But एक आम आदमी, a common man who thinks that this person is holding this office illegally without lawful authority, then he will go under the writ of quo warranto before the high courts under article 199 to challenge the appointment or the sitting of that person or holding the charge of that person on a particular seat, because it's a question of public interest litigation. The person who is holding the office is enjoying the salary and benefits from the public funds. So it is the authority of a common man to challenge that a person is holding this seat or occupying this position unlawfully. Then he has got the power, he has got the option to go and file a constitutional petition under Article 199 in the name of writ of quo warranto. The court will issue a notice and they will ask that under what authority, under what provisions of law you are holding this office. And if the courts find that the person is holding this office illegally, then the court will issue a writ, the court will issue a direction for the removal of that person from this position. But when it comes to an employee, when it comes to civil servant, अगर कोई आम सरकारी मुलाजिम को कोई तकलीफ है कि जी मेरा प्रमोशन सही नहीं हुआ, जी डायरेक्टर साहब ने नाजायजी कर दी, मेरा ट्रांसफर इलीगल है, और ये आदमी जो पोजीशन अपनी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो एडिशनल उसके पास चार्ज है ये गलत है, ये चार्ज मुझे मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, then he will file a services appeal, an appeal before the services tribunal. Is it okay? Yes, sir. It is. Any other question? Now it's clear. और कोई सवाल जी? Any other question if you have?